Here my next point is and techniques of planning or steps in planning or process of planning. So techniques, steps and process, three things are same, and this topic is very important for your exam. So first of all, it is important to note that process of planning is more valuable than the plan itself. So the planning process forces manager and workers to mentally look ahead, to anticipate problem of implementation and to develop solutions that they are feasible. It is very difficult to prescribe and fix process of planning for the organization. However, the major steps involved in planning may be discussed as follows. So planning, process of planning is very important in an entire organization because, and if it is always helpful to implementation of any problem, as well as to develop the solution of any problem. So and it is always a flexible, I already taught you planning is flexible. So if we organization plan very well and in very good manner, definitely it will help to solve any situation, and as well as achieve any goals very easily. So first of all, for determination of objective, it is the first point of process of planning. So determination of objectives, the means objective को कैसे निर्धारित किया जाता है. The first step in planning is setting the objective or goals. These objectives relate to what the organization need. So first step is setting the objective goals. क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट किए जाते हैं, एंड दिस ऑब्जेक्टिव रिलेट टू व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है. द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड एंड मेजरेबल एज फार एज पॉसिबल्स. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्पेसिफाइड होंगे, मेजरेबल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. सो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, इंटीग्रेटेड मीन्स एक साथ एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं किनके, human means employees as well as physical factors, it means land and machines, and should be channelized towards the desired objectives, and these both and physical factors always usable for achieve any specific objective. So planning should always be goal oriented. Planning क्या होगी, हमेशा goal oriented होना चाहिए. That is the main motive of any organization. Objective indicate what basically is to be done, where the primary emphasis to be placed, and what is to be accomplished by the network of policies, procedure, rules, programs and strategies. So objectives क्या indicate किया जाता है, क्या बेसिकली क्या किया जाना चाहिए, एंड वे इज द प्राइमरी किस चीज़ में ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये क्या लाइक किस चीज़ में जोर दें, पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर्स में, रूल्स एंड प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज में. दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग. सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंपली ये चीज़ है कि जो भी ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए. देन सेकेंड इज establishing planning premises. So the second step in the planning process involve establishing the planning premises or assumption. तो establish premises and assumptions को establish किया जाता है, उसको assumptions को बनाया जाता है. Under this certain assumptions upon which the planning will be predicted are made. Plannings को इसमें क्या किया जाता है, जैसे predict किया जाता है, सोचा जाता है कि कैसे वर्क करना है. These premises and constraint points or the background assumed to exist to validate the plan. They are backdrops on the stage of planning. So it means a backdrop means जो भी premises है, assumptions है, background of the planning जिसके बेस में planning होती है, and it is and should be carefully noted so that plan can be thoroughly understood. तो जो भी assumptions आकर हम उसको केयरफुली समझेंगे, नोट करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने प्लानिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, द एंटायर प्लान ऑफ द एंटरप्राइजेज इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सेपरेट प्लान्स. तो जो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो भी प्लान है किसी भी एंटरप्राइजेस के, वो सबके अपने अपने सेपरेट प्लान्स होते हैं जिसे हम
फोरकास्ट कहते हैं। फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर्स के बारे में सोचना। दिस फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर सच एज जनरल बिजनेस फोरकास्ट, कि आपका जनरल बिजनेस आगे कैसा चलेगा। सेल फोरकास्ट, सेल्स हमारी आगे कैसे बढ़ेगी। देन कैपिटल फोरकास्ट, कैसे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में। देन थर्ड इज डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव मीन्स एक के अलावा। So when the forecasts are available and premises are established, a number of alternative course of action have to be considered. तो जब हम forecast प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि alternative course को भी हमें establish करना होगा. Often there will be more than one way to achieve a particular objective. In fact, in many situations there may be an unlimited number of alternative plans of action. The management should try to find out these alternatives and examine them carefully in the light of planning premises. It means organization always emphasize to different alternative plannings. If they use alternative plans of action, definitely they easily choose which action is useful for to execute the plan of the organization. So third is selecting the fourth is selecting the best course after evaluating the various alternatives. जब हमें पता चल गया हमारे पास कितने सारे कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन उस ऑल्टरनेटिव में बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक्स और अदरवाइज अ डिसीजन मे बी अल्टीमेटली मे बी मेड फेवर ऑफ वन और द अदर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. सो जो भी हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है किस बेस में लेंगे हम उसे, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टेक्निक के हेल्प से हम उस प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उस सुटेबल ऑल्टरनेटिव कोर्स को हम चूज़ करेंगे. देन फिफ्थ इज इस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़. आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, हमने बेस्ट प्लान चूज़ किया, देन इट रिलेशन टू ऑल एक्टिविटीज़ अफेक्टेड बाय इट वर्कआउट द डिटेल्स ऑफ वेयर द प्लान्ड एक्शन शुड बी डन. उसके बाद हमें क्या करना है कि पूरी डिटेल्स हम निकालेंगे, डिटेल्स तैयार करेंगे कि कैसे हमारे प्लान को एग्जीक्यूट हमें करना चाहिए, बाय होम कौन से एग्जीक्यूट करेगा, एंड व्हेन कब हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, एंड पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर द इंटरनेट एंड पर्पस. और जो भी हमारे प्लानिंग से हमें एक ऑर्डर में जमा के उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करना होता है. देन डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान्स. सेकेंडरी प्लान्स फ्लो फ्रॉम द बेसिक प्लान. जब हमारा बेसिक प्लान में काम चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फेसाइज टू ऑल्सो डिटरमाइन सेकेंडरी प्लान ऑल्सो. दिस आर मीन्स टू सपोर्ट एंड एक्सीलेट द अचीवमेंट ऑफ बेसिक प्लान. आखिर बेसिक प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज रेडी होता है सेकेंडरी प्लान्स. फॉर एग्जाम्पल वंस द प्रोडक्शन प्लान इज प्रिपेयर, सेकेंडरी प्लान्स रिगार्डिंग रॉ मटेरियल मीन्स कि हमने सोचा कि हमें प्रोडक्शन प्लान रेडी करना है, तो सेकेंडरी प्लान इसमें क्या होगा कि रॉ मटेरियल कैसे होगा, कौन से स्टोर्स में हम अपना रॉ मटेरियल्स रखेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने होंगे, कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने होंगे, एंड देन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान हमारा बेसिक प्लान होगा. सेकेंडरी होगा कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए जो भी सेकेंडरी चीज़ें लगेंगी उसको तैयार करना, दैट इज़ अ सेकेंडरी प्लान. देन सेवंथ इज सिक्योरिंग cooperation. The plans formulated must be implemented effectively. For the purpose, cooperation of all the members of the organization is needed. So अब जब भी प्लानिंग्स जो तैयार होंगी, that is the main responsibility of each and every workers. They are cooperate to the planning of the organization. The plan should be communicated and explained in proper forms to the worker. और ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बने हैं डेफिनेटली दे शुड एक्सप्लेन एंड एज वेल एज कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरी वर्कर सो दे ऑल नो व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन एट्थ इज रिव्यूइंग द प्लानिंग प्रोसेस. सक्सेस ऑफ द प्लान इज मेजर्ड बाय द रिजल्ट. जो ये प्लान कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उस रिजल्ट को रिव्यू करना. देयरफॉर प्रोविजन ऑफ एडुकेट फॉलो अप डिटरमाइंड कॉम्प्लेंस एंड रिजल्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लानिंग वर्क. तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने के लिए
वर्क करने के लिए प्लानिंग यूज़ कर रहे हैं उसको हम डेफिनेटली एवेल्यूएट, उसका रिज़ल्ट को हम कैलकुलेट करें, उसका रिज़ल्ट हम समझें कि जो प्लानिंग है वो फ्रूटफुल है कि नहीं, उसका जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. So that 8 point is very important for the process of planning, and this topic is very important for your exam. So definitely you just write down your notebook as well as you learn and each and every point very carefully.